you to introduce yourself? Hello, ma'am. My name is Aryan Chhabra. I'm from Rewa, Madhya Pradesh. I've just completed my graduation from Bhopal School of Social Science, that is BCA. I'm a single child of my parents. My father is a businessman and my mother is a housemaker. Talking about my skills, I'm confident that I have the skills to do good in this job profile. I'm a fast learner, can communicate with people, and also can build good and healthy relationship with people. And also can manage significant workload. For example, I've done a job with Kanodia Brothers, where my role is to convince customer about the product, convey my message to the customers about my product and convert them into a sale with the help of a demo. Uh, as I told you, I'm from my father is a businessman. I can also manage retail business and as well as wholesale scenario of a business. Outside of work, I'm a ambitious person who loves to travel, who loves to interact with strangers. A big fan of cricket, love to watch cricket and play cricket in my free time. Uh, Apart from that, I can only say that the type of person I am, I act as a positive role model for your company, and I will make sure I'll take the responsibility of my professional work. Thank you, ma'am. Okay, it's so wonderful to know about you. So I just want to know you that if you are asked to convince someone, then some people will be there who will think this ethics and online education is not that useful or advantageous if we compare with the physical education. Yes. So in this case, how will what message you want to convey to the people for whom this online education is a waste of money? I mean, what important points you want to highlight to those people? Ma'am, I'll try to tell them that. Can I, ma'am, speak in Hindi? Yeah, sure. Any language. मैम मैं उनसे कोशिश करूंगा उनको समझाने की कि आज के समय में जैसे पहले के समय में जो चीजें होती थी अब काफी चीजें बदल गई हैं। अब आजकल के बच्चे भी जो हैं वो आजकल डिजिटल गैजेट्स की तरफ ज्यादा यूज टू हैं और ज्यादा कंफर्टेबल हैं उन चीजों को लेके। तो हमको ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफी वो मिलता है कि हम अपना मैसेज ज्यादा अच्छे से पहुंचा सकते हैं। मतलब उनको हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को विजुअलाइजेशन में, उनको सारे रिकॉर्ड्स उनका काफी इजी हो जाता है उनको मेंटेन रखने के लिए। तो मैं उनको बताऊंगा कि हमको सिर्फ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में मैम अपन को सिर्फ एक टीचर समझाता है और हमारे साथ ये होगा ऑनलाइन क्लासेस में कि हम उनको एनिमेशन के थ्रू भी काफी समझा सकते हैं। ओके, सो आप खुद का एक 3 ऐसे क्वालिटीज बताइए जो which is very much important in the sales profile and which distinguish you from other participants or other candidates. मैम आई एम अ फास्ट लर्नर। आई नो हाउ, मुझे ये पता है मैम कि अल्टीमेटली मेरा जो गोल होगा वो कंपनी के गोल से मैच होना चाहिए। और मुझे पता है कि सेल्स जॉब में मुझे हमेशा चैलेंजिंग टारगेट्स मिलेंगे और मुझे उनको फुलफिल करना ही मेरा एक ऑब्जेक्टिव होगा, और बिजनेस और कंपनी को बिजनेस ला के देना मेरा एक ऑब्जेक्टिव होगा। और मेरी स्ट्रेंथ मैम कि मैं लोगों से काफी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। Yes, ma'am. These are my 3 skills. Okay. So, आप तो अपने पहले जॉब पे भी you were performing good, yes. So now, why suddenly you have left the job and why suddenly you want to switch to some other companies? Ma'am, actually, I want to start my professional career in Byjus or in a company, क्योंकि मैम जैसे वो मेरी जो पिछली जॉब थी, तो we can't go with a professionalism मैम, वहाँ पे थोड़ा सा लैक था वहां पे। मतलब कि मैं वहां पे अपना कैरियर नहीं देख सकता था, आगे के फ्यूचर नहीं देख सकता था मैं वहां पे। और मैं अगर बात करूं जैसे अभी बायजूस के लिए, तो बायजूस में मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे को सीखने को मिलेंगी, बहुत अपस्किल होने का मौका मिलेगा मेरे को। तो दैट्स व्हाई मैं स्विच करना चाहता हूँ।
Okay, so I just want to check your convincing skill because you are already an experienced person, right? So that's why I want to ask you some scenario-based question where you will treat me like a customer. So you'll have to imagine the situation. आपको ऐसे मतलब imagine कर लेना पड़ेगा कि अभी आप एक सेल्स पर्सन हो और एक मैं एक कस्टमर हूँ. Okay. So my first scenario is that suppose I'm a person who loves iPhone. कुछ लोगों को iPhone के बड़े मतलब शौक होते हैं. So मैं भी वैसे टाइप की हूँ. And now I'll come to your shop to buy an iPhone, yes. But now you will have to convince me to buy the most trending phone, which is the OnePlus phone. But वो OnePlus खरीदने के लिए convince करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे सिर्फ iPhone में ही शौक है. So ऐसे situations को आप कैसे handle करोगे and कैसे convince करोगे? I want to check that. Okay, ma'am. Can I start? Yeah, sure. Hello, ma'am. How are you? I'm fine. Thank you. How may I help you, ma'am? मुझे एक आईफोन चाहिए थी, तो आप मुझे आईफोन 12 या आईफोन 12 प्रो दोनों ही दिखा सकते हो और मैं उसके हिसाब से आई विल डिसाइड. ओके मैम, मैं लेकिन आपको उसके पहले वन प्लस दिखाना चाहूंगा. अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर आप बताएं. हाँ, टाइम तो है, लेकिन मैं डिसाइड करके आई हूँ कि मुझे आज आईफोन ही खरीदनी है. मैंने बहुत दिनों से आई हैव ड्रीम ऑफ बाइंग एन आईफोन, सो आई वांट टू फुलफिल माय ड्रीम टुडे. ओके मैम, मैं आईफोन भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको मैं वन प्लस दिखाना चाहता हूँ. हाँ, लेकिन मैम वन ये फोन है. प्लस, हाँ वन प्लस के बारे में मुझे पता है, लेकिन मुझे उतना शौक नहीं है वन प्लस में. मैम आप एक बार देख सकते हो, आपको अगर नहीं पसंद हाँ, आएगा तो आप बिल्कुल आईफोन के लिए जा सकते हो. मैम ये ओके. आईफोन सॉरी वन प्लस है. और इस वन प्लस की बेस्ट जो क्वालिटीज हैं वो क्या आपको इसमें मिलेगा. स्नैपड्रैगन 865 कॉलकॉम प्रोसेसर है. और आपको ट्रिपल एआई कैमरा मिलेगा इसके साथ. इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिलेंगे मैम एज कम्पेयर टू आईफोन की, जो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होंगे. एक तो आपको ये आईफोन की रेंज से भी कम में मिल रहा है. दूसरी चीज बेस्ट प्रोसेसिंग दे रहा है. अगर आप दोनों को अगल बगल रख के कंपेयर भी करोगे तो आपको फास्ट प्रोसेसिंग दे रहा है. और अभी तक का वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोसेसर इसमें यूज हो रहा है, जो कि है स्नैपड्रैगन 865. उसके साथ साथ मैम आपको कैमरा क्वालिटी में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. आप डुअल सिम इसको यूज कर सकते हो और काफी एडवांटेजेस हैं इसके एज कम्पेयर टू आईफोन. हाँ, बट इफ आई कंपेयर आईफोन 12 प्रो, आई थिंक मुझे सेम ही फीचर्स मिलेंगे. मतलब इफ आई कंपेयर बोथ द फीचर्स, बोथ आर बेस्ड, एंड यस देखने मैम, में यस तो मैम. आईफोन 12 प्रो ज्यादा ही सुंदर है. हाँ बिल्कुल कह सकते हैं मैम. आप आपकी बात में बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन आप वन प्लस को आपने कभी इसके पहले यूज किया है क्या वन प्लस? नहीं. मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ मैम क्योंकि आई एम ऑलरेडी यूजिंग वन प्लस और आप इसको यूज कर के देख सकते हो. और मैं आपको एक चीज और बोल सकता हूँ कि आप इसको यूज करो. और आपको अगर नहीं पसंद आता है किसी भी वजह से, फिर आपको ऐसा ही लगता है कि मुझे आईफोन पे ही स्टिक करना है, तो आप हमारे पास 2 दिन बाद आ सकते हो और हम आपको आईफोन पे स्विच करके दे देंगे. नो वरीज मैम. ओके. ओके, बट मतलब प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज आप तो एक सेल्स पर्सन हो और आपके पास दोनों ही चीज है, तो आप अगर इसमें मतलब प्राइस अगर इसका कम है एज कम्पेयर टू आईफोन, तो आप अपना लॉस क्यों करना चाहते हैं? मैम वी बिलीव इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोर देन आवर अर्निंग. मतलब हमारे लिए हमारी अर्निंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिले. और आप भी जानते हो कि मैम एप्पल थोड़ा सा एक वो एप्पल के टैग के लिए काफी जाना जाता है. बहुत सारे फीचर्स देता है मैम, नो डाउट, बहुत अच्छा फोन है, सब कुछ है. बट इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी कि आप कहीं पे 80,000 85,000 स्पेंड कर रहे हो और यहाँ पे 50,000 स्पेंड कर रहे हो, आपको स्पेसिफिकेशन सेम मिल रहे हैं. तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी जाना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा. ओके. Okay, so Abhi, my next question is that suppose I'm an illiterate person who never went to school. So now you'll Okay. have to, sell, A4 size paper to me, who have no Okay. idea about anything about education, school and all. ओके. हेलो मैम, कैसे हो हेलो. आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ. और मैम आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक पेपर है, जो वैसे मैं ये जान सकता हूँ क्या उसके पहले कि आप क्या काम करते हो, कहाँ पे,
कैसे रहते हो, क्या करते हो? हाँ, एक्चुअली मैं कभी स्कूल गई नहीं क्योंकि कुछ जी। प्रॉब्लम थी घर की फाइनेंशियल, और मुझे अपने यंगर्स को पढ़ाने थे इसलिए। तो हम्म। हाँ, अभी मैं ऐसे ही घर की काम थोड़ी देखती हूँ, मतलब कुछ अलग कामों में ही लगे रहती हूँ। ओके मैम, तो मैम बहुत अच्छी चीज लगी मुझे ये कि आप अपने छोटे भाइयों को बहनों को पढ़ाना चाहते थे, उस वजह से आपने हम्म। सेक्रीफाइस किया। मैम हम्म। ये एक पेपर है, और इस हम्म। पेपर के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे आप इसमें आपका डेली जो आपके खर्चे हैं उनका हिसाब रखना चाहो तो आप रख सकते हो, हाँ, और नहीं लेकिन रखना मैं चाहो। मतलब हिसाब के लिए मेरे छोटे जो यंगर्स है वो लोग ही हेल्प करते हैं, क्योंकि मुझे उतना अच्छे तरह से आता नहीं, मैं कभी स्कूल गई ही नहीं। ओके ओके मैम, नो वरीज मैम। मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि आपको जैसे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो आई थिंक यू बिलीव इन गॉड और समथिंग। या या हाँ, तो मैम आप इसमें एक कोई भी एक तरीके का मंत्र और एक तरीके के भगवान की फोटो, कुछ भी जो भी जिनको भी आप रिलीजियसली फॉलो करते हो, उनकी आप एक पिक्चर बनवा सकते हो, या फिर उसमें एक कोई उनका मंत्र लिख सकते हो। तो वो आप जब भी उस पेपर को देखोगे तो आपको वो एक पॉजिटिव वाइब ही देगा, क्योंकि हमको ये बात पता है कि अल्टीमेटली ऊपर वाला जो भी होता है तो वो एक पॉजिटिव वाइब ही देता है कि हम कितना भी लो फील कर रहे हो कोई भी सिचुएशन को लेके, तो वो हमको एक मोटिवेट करता है। तो इस वजह से मैम आपको ये पेपर जरूर देखना चाहिए और लेना चाहिए। हाँ, मतलब भगवान के आप क्या बोले, फोटो में चिपका उस पे, एक पेपर अ, पे? आप स्केच बनवा सकते हो, आप मतलब वो पेपर आपके ऐसे काम में होगा कि आप रेगुलर उसको यूज कर सकते हो। जैसे अभी तो होता है कि भगवान के लिए हमको सिर्फ मंदिर के सामने जाना पड़ता है, तो वो हम्म। जब भी आप लो फील कर रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे तो वो आपके पास पेपर होगा, आप उसको कभी भी देखोगे तो आपको एक अच्छी वाइब मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, और हर टफ सिचुएशन से और अच्छी सिचुएशन से लड़ने का एक हौसला मिलेगा। ओके, और उस पेपर का कितना कॉस्ट होगा? मैम नथिंग, इट्स जस्ट 1 रुपीज। आप सिर्फ 1 रुपए में पेपर देना चाहते हो? ठीक है, फिर तो मैं यस ले मैम। लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। Okay, so my next question is that suppose I stay in a place which is very cold. Let's say I stay in Manali. So now you will ओके। have to convince me to buy a piece of ice, okay? But there is one condition. I'm a person who is having, certain health issues like sinus and all. So I stay ओके ओके। very far away from cold things. So in this case, you will have to convince me to buy a piece of ice. बाय अ पीस ऑफ आइस, ओके मैम। Yeah. हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm fine. आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैम ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप कोल्ड एरिया में ही रहते हो, तो ये एक हम्म। पीस ऑफ आइस है, और ये मैम हम्म। स्पेशल तरीके के वाटर से बनाया हुआ है। ये हम्म। एक आयोनाइज्ड वाटर है, और हम्म। ये मोस्टली सेलेब्स यूज करते हैं। जैसे आपने मैम मुझे बताया कि आपको साइनस की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम्म। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आइस का आप काफी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हो। आप हेल्थ में भी अपने यूज कर सकते हो। आप जैसे देख पा रहा हूँ कि आप काफी अच्छे हो, तो आप अपने चेहरे पे और यूज कर सकते हो कि रिंकल्स नहीं आए और ड्राई स्किन नहीं हो। और जैसे कहीं पे किसी भी वजह से चोट लग जाती है, मसल स्प्रेन हो हम्म। जाता है, कुछ भी हो जाता है, हम्म। तो उसमें आप यूज कर सकते हो इस आइस को। हाँ, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आई एम ऑलरेडी अ पेशेंट ऑफ संन्यास। सो अभी अगर मैं फिर से आइस फेस पे या बॉडी पे इस्तेमाल करूंगी तो आई थिंक इट विल अफेक्ट माय हेल्थ, मुझे और बीमार कर देगी। नहीं मैम, मेरे हिसाब से साइनस एक पर्टिकुलर एलर्जी होती है जो कि कुछ हाँ, लेकिन मेरी उसकी बहुत वजह से सर्दी बहुत ज्यादा होती है ना मेरी, तो मैं ठंडी अच्छा अच्छा। चीजों से थोड़ी दूर रहती हूँ। मतलब मैं जितना चाहे खुद को गर्म चीजें ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। एंड ऊपर से नो वरीज। हमारे यहाँ पे तो अभी स्नोफॉल हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ठंड है। तो अब ठंड में ही हाँ। मुझे फिर से ठंड अगर यूज करने दे रही है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। नो नो मैम, आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ रहते हैं क्या? हाँ हाँ। हम्म। हाँ, तो वो आपके फैमिली मेंबर्स के काम आ सकता है। वो अपना फेशियल के लिए और बाकी बॉडी में यूज करने के लिए कुछ ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जो कि मैम ठंडी अच्छी लगती हैं, तो उसमें भी हम हम्म। यूज कर सकते हैं। जैसे घर पे अगर कोई है कुछ मतलब
शौकीन है ड्रिंक का, तो उसमें भी यूज हो सकती है एज आइस क्यूब, तो आपके Okay. काफी बेनिफिशियल होगी। Okay. 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 So now we'll be having some academic questions. Okay. So now my first question is that can you tell me the color of rainbow in a sequential manner? वॉयलेट, Hmm. इंडिगो, Hmm. ब्लू, Okay. ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। Okay. So any two types of triangle can you name? ट्राइंगल, Hmm. अभी याद नहीं आ रहा मैम कुछ भी Okay, no ऐसा। problem. Okay. So can you tell me why the color of the sky is blue? यस मैम, क्योंकि जो सन की रेज आती हैं अर्थ पे, Hmm. तो वो रिफ्लेक्ट होके जब ऊपर को जाती हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से वो जैसे रेनबो की वजह से काफी कलर्स निकलते हैं, तो ब्लू कलर की जो विजुअलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है काफी कलर्स के कंपैरिजन में, तो इस वजह से स्काई ब्लू दिखता है हमको What is the यूजुअली। color of the sun? वाइट। Yeah. So now I'll move on to some BDA questions of Byjus. Okay. So before ओके। going into the scenario based, I want to know that what is the role of BDA in Byjus, or what if I talk about the BDA in Byjus, what exactly comes to your mind? मैम एज अ बीडीए, फुल फॉर्म ऑफ बीडीए इज बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, और ये कंपनी को हेल्प करता है बिजनेस लाने में। ये बेसिकली जो बायजूस का प्रोडक्ट है उसको कस्टमर्स के पास जाके और कस्टमर्स को बताता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उनको समझाता है कि दिस इज बेसिकली दिस इज द प्रोडक्ट, और उनको कन्विंस करता है कि उनको ये चीज यूज करनी चाहिए। जैसे एक प्रॉब्लम है कि देखिए बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इफ आई कंपेयर यू नो द रजिस्ट्रेशन हो या फिर द होल कोर्स फी ऑफ बायजूस एज कंपेयर टू अदर एपेक्स, इट इज अ बिट हाई, यू नो, थोड़ा सा यस अमाउंट मैम। ज्यादा है। तो इस जी चीज को आप कैसे, यू नो, हाउ विल यू कन्विंस पीपल और हाउ विल यू यू नो सोल्व दिस प्रॉब्लम? I mean, we cannot मैम। change the thinking of the people, yes, but कुछ यस मैम। तो बोलेंगे आप, तो क्या वो बोलेंगे? यस मैम। मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि बाकी जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम कुछ चीजें आपको ज्यादा दे रहे हैं, जैसे एडेप्टिव लर्निंग हो गया, विजुअलाइजेशन मोड हो गया, पर्सनल इनहेंसमेंट हो गया, और पेरेंटल कंट्रोल हो गया, तो हम ये सारी चीजें उनको उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजों के बारे में, और उनको बताऊंगा कि इस वजह से हमारे थोड़ा प्राइसेस हाई है। ओके ओके, सो नाउ सपोज एक ऐसा सिचुएशन है कि सपोज आई एम अ टीचर, ओके, I ओके। myself a teacher and who looks after my child's studies and everything. So in this case, how will you convince me to take Byjus? Because being a teacher, I think and I believe that only physical tutor is important, or whatever I am providing my son is absolutely fine. I don't require any other thing or any other modes for my child. So आप इस चीज को कैसे हैंडल करोगे? Suppose you are a BDA and you have just visited my home for a home conduction session. ओके मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम गुड मैम, आई एम गुड। सबको सब कुछ घर में कैसा है? सब हाँ ठीक सब, है क्या? हाँ अभी ठीक है कोविड से सब अपन ठीक। निकल के आए हैं, सब ऑल गुड इन योर हाउस? हाँ, कोविड का सिचुएशन तो अभी बहुत ही ज्यादा मतलब है, पर फिर भी इट्स स्टेबल, तो हम थोड़ा ठीक ही ओके। बेटर फील कर रहे हैं। ओके नाइस मैम, कैन आई नो कि आपका चाइल्ड कौन सी क्लास में है? क्लास 3 में है। ओके। मैम, जैसे आपने मुझे बताया कि आप उनको खुद ही पढ़ाते हो और काफी अच्छा वो स्कोर भी कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायजूस में आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे। जैसे आपने बताया कि आप टीचर हो, तो आप भी बिजी रहते होगे, स्कूल जाना रहता होगा आपको, कोचिंग्स वगैरह जो कुछ भी आपके रहते होंगे, तो उस वजह से आप प्रॉपर टाइम उनको नहीं दे पाते होगे। और आज का, जैसे आप भी मैम जानते होंगे कि बच्चों के साथ जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाई में, और मेन बेसिक उनका नॉलेज
अगर जब कमजोर रह जाता है तो आगे काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी तो आप उसको पढ़ा ले रहे हो, लेकिन जब वो 12th में पहुंचेगा तो उसके जो बेसिक चीजें रहेंगी वो भूल चुका होगा वो। क्योंकि आप जब कोई चीज पढ़ते हो तो आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए याद रह पाती है। लेकिन बायजूस में आपको प्रॉफिट ये मिलेगा मैम कि आप जब बच्चा आपका वीडियोस देखेगा तो वो एक कहानी के तौर पे देखेगा, वो एक स्टोरी के तौर पे देखेगा, तो ऑलरेडी उसके दिमाग में स्टोर हो चुकी होंगी, उसको उन चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा उसको। और डिजिटली भी आज के समय में बच्चे काफी एक्टिव रहते हैं, तो उसको एक काफी इंकरेजमेंट मिलेगा, एक काफी वो अटैचमेंट फील कर पाएगा वो वीडियो से, हाँ, तो वो वो खुद ही आपने पढ़ने के जो लिए। कही, आई एग्री टू ऑल योर पॉइंट्स, लेकिन बात ये है यस कि मैम। जो मेरा बच्चा है, ही इज ऑलरेडी डूइंग गुड इन हिज स्टडीज। मतलब ऐसा कोई ओके। प्रॉब्लम्स हम लोग फेस नहीं कर रहे जिसके लिए उसको कुछ सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि जो उसको नोट्स वगैरह चाहिए वो मैं उसको हेल्प करती हूँ, एंड वो खुद ही कर सकता है अभी उस मतलब एट दिस एज ही कैन मैनेज हिज थिंग्स प्रॉपरली। सो अभी इसलिए मैं यस नहीं चाहती कि हम कोई अलग सोचे उसके लिए, क्योंकि वो कुछ ज्यादा उसको प्रेशर में भी ला सकता है। ओके मैम, दैट्स ग्रेट कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और आप काफी अच्छा सोच रहे हैं उनके लिए। लेकिन मेरा मैम ऐसा मानना है कि बच्चे को कॉम्पिटिटिव बनाना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। और हम्म। बायजूस में आपको काफी रोज के आपको डेली के टेस्ट मिलेंगे। आपका बच्चा वर्ल्ड के काफी बच्चों से compete कर पाएगा, उसको पता चल पाएगा कि वो किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। अभी आपका बच्चा तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कूल में अपना प्रोग्रेस दिखा पा रहा है, आगे चल के उसको सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबली उसको compete करना पड़ेगा। तो हम अभी से उसको इस चीज की तैयारी करवाएंगे कि उसको कैसे compete करना है, कैसे उसको और चैलेंजिंग बनना है, कैसे उसको अपने आप को हमेशा अपस्किल करते रहना है। So these benefits you are going to get in this. ओके, लेकिन उसका प्राइस भी तो थोड़ा सा हाई है ना, मतलब अगर हमको एनरोल करना भी पड़ा तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट देनी पड़ेगी। मैम, मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में बायजूस काफी चीप है। कि आप अगर देखो तो आप मेट्रो सिटीज में आपको 3,000 रुपए, 2,500 रुपए आपकी ट्यूशन फीस होती है। और उसमें भी टीचर आपको पढ़ाने आता है, वो भी वो ही पढ़ाता है जो आप घर पे पढ़ा रहे होगे। तो ये मेरे हिसाब से काफी हेल्पफुल होता है कि आप। और मैम, एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जो एक तरीके का एक्सपेंस नहीं है, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको आगे चल के श्योर रिटर्न मिलना है। ओके। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सपोज आप मेरे घर में आए थे होम सेशन के लिए, होम कंडक्शन के लिए, और आई वाज इम्प्रेस्ड विद द एवरीथिंग विथ योर आई मीन विथ योर सेशन, व्हाटएवर यू एक्सप्लेन अबाउट बायजूस, जितना भी आपने बायजूस के बारे में बोली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड आई वाज अबाउट टू गेट एनरोल, बट एट द सेम टाइम माय नेबर विजिटेड माय होम एंड दे जस्ट शाउटेड कि बायजूस नहीं लेना है, बायजूस लेके हमारे बच्चे तो बिगड़ गए हैं, रिफंड भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, मतलब बायजूस के बारे में बहुत सारे बदनामी करके नेबर वेंट अवे फ्रॉम माय होम। सो नाउ हाउ विल यू हैंडल ओके दिस सिचुएशन? मैम, कैन आई रोल प्ले और आई नीड टू जस्ट एक्सप्लेन पॉइंट टू पॉइंट? या यू कैन डू योर रोल प्ले आल्सो। ओके मैम, मैं पहले उनको बुलाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि सर व्हाट इज द इशू, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, किन वजहों से प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं जान सकता हूँ मैम आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन वजह से आ रही हैं, कहाँ पे आपको हमारे हिसाब से हम लैक हुए हैं, आप कोई एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाए, क्या आप बता सकते हो हमको? हाँ, जैसे कि सपोज उनका बच्चा पहले पढ़ रहा था, लेकिन फर्स्ट 2 वीक में बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद सडनली थोड़ा थोड़ा और स्लोली स्लोली इंटरेस्ट उठ गया, एक ही चीज को बार बार मतलब देख रहे थे। या कभी कभी होता है ना, बच्चे मतलब जब टैबलेट मिलता है तो कुछ भी करता रहता है, उतना पढ़ाई में यस ध्यान नहीं देता है, और मे बी मेंटर के तरफ से भी उतना वो नहीं मिल रहा होगा जिसके लिए बच्चा थोड़ा सा उसको कैजुअली लेने लगे। सो एट द ओके एंड he just sit and he gave his maximum hours of time in the tablet, but he doesn't study, तो उससे चलिए। पढ़ाई का भी टाइम वेस्ट होता है, एंड एवरीथिंग, his energy, his everything is wasted. So yeah, ओके this is the problem. मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हम कोई ऐसा मैजिक नहीं करते हैं।
बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होगी कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और जो आपने बताया मेंटोर के लिए कि मेंटोर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो उस चीज के लिए मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। और मेन बात मैम ये है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज हर इंसान के लिए सही हो। कि अब आज आपका बच्चा किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, तो आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए था और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। मैं आपके बच्चे का, अगर आप चाहोगे तो एक बार काउंसलिंग करना चाहूंगा, उनके साथ बैठना चाहूंगा और उनकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन इशू है, उसको समझना चाहूंगा कि क्या है और किस वजह से ऐसा हो पा रहा है। तो आई विल ट्राई टू Okay. रिजॉल्व योर इशू। Okay, so you will try to resolve the issue first, and after that you will यस go for मैम, a teaching of the everything. I mean the course and everything. आई विल ट्राई कि मैम मैं उनसे पहले कन्विंस करूंगा उनको कि क्या इशू आ रहा है, वहां पे अगर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो देन आई विल मूव फॉरवर्ड। Okay, that's a good point. Okay, so next question is that suppose you are selected for the BDT role and your training is also about to end. So अभी 2 दिन training के बचे हैं and till now you are unable to complete the target. जो टारगेट आपको दिया ओके। गया कि इस अमाउंट का सेल करवा के दो, तो अभी अगर आपको मैनेजर ऐसा कुछ आपको बोले कि अगर ये 2 दिन में टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ देन यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, सो व्हाट विल यू डू? आप खुद के पैसों से सेल करवाओगे, यू विल क्विट द जॉब and you will move to some other companies or anything, or आप कुछ अलग करोगे? मैम आई विल गिव माई 100%। वो जो 2 दिन मेरे पास होंगे उसमें मैं हम्म अपना 100% दूंगा और जो मेरी टाइमिंग होगी उससे ज्यादा दूंगा कि मैं अपना टारगेट फुलफिल कर पाऊँ। और जहां तक मुझे बिलीव है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आती भी है तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो टारगेट्स अपने अचीव करूं। तो आप अपने खुद के पैसे दे के शॉर्टकट में सेल नहीं करवाओगे, बिकॉज बाद में तो सैलरी मिलनी चाहिए। मैम बिल्कुल चाहिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे ऐसा करूंगा तो मे बी आगे के मैं टारगेट्स अगर अपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। एक बार दो हम्म बार तो मान लीजिए मैं अपने पैसे देके कर लूंगा, लेकिन आगे नहीं हो पाया तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा इस चीज का। इसलिए मैं कोशिश हम्म। करूंगा कि अपनी एबिलिटीज के उस पे ही मैं सेल करूँ। ओके, सो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में अगर मैं एक 3 चीजों को डालने दूं, नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 और नंबर 3, तो 3 वर्ड्स में दूंगी तो आप किस हिसाब से उसको रखेंगे? ओके, सो ओके मनी, मनी, जॉब स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो कौन सा फर्स्ट आएगा मनी, जॉब स्टेबिलिटी और ग्रोथ में? कौन सा सेकेंड एंड कौन सा थर्ड? मैम ग्रोथ, ओके देन मनी, देन जॉब स्टेबिलिटी। और मैम ओके उसकी सो वजह ये है कि ग्रोथ अगर होगी मेरी, अगर ग्रोथ हो रही होगी, ग्रोथ का इज नॉट अबाउट मनी और इट्स नॉट अबाउट जॉब प्रोफेशन, इट्स अबाउट अगर मैं अपने आप को अपस्किल कर पा रहा हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपनी जॉब में भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा और जॉब में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा तो पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। ओके, सो सपोज जैसे कि यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस, यू आर ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ सेल्स, तो मैं इसीलिए वाई सेल्स नहीं पूछूंगी, लेकिन हाँ मुझे बायजू और आप यू आर इंटरेस्टेड बिकॉज यू वांट टू ग्रो एंड आपको एक ऐसा बायजूस जैसा एक बहुत रेपुटेड एडटेक चाहिए, तो दैट्स वेरी प्लेटफॉर्म फाइन। मिल गया इसमें। हाँ प्लेटफॉर्म चाहिए, तो बट यू सी आपके फ्रेंड्स होंगे आपके साथ हु आर वर्किंग समवेयर, कुछ लोग आईटी, कुछ लोग कहीं और काम करेंगे, तो उन सब यस मैम। के लिए weekends will be some days to relax, to enjoy, weekends होंगे उनके लिए सैटरडे संडेज, बट ऑन द अदर हैंड यू विल बी द पर्सन, सिर्फ आपको मंडे ट्यूसडे ही मिलेंगे, और अगर आप टारगेट्स अचीव ना कर पाए मंडे और ट्यूसडे, कभी आपको लग जाएंगे कि कभी मंडे में भी काम करना पड़ जाएंगे, and यस Saturday मैम। and Sundays will be full-fledged work. There will be no holidays in those days. So उस चीज को लेके आपका मतलब क्या मानना है? Will you feel bad for that because your friends will chill outside and you will be working still with convincing people and all? What do you think? आपको एक नो मैम, relaxing life नहीं मिलेगी? मैम इट्स ओके। अभी जिस भी हम एज क्राइटेरिया में अभी बिलोंग कर रहे हैं, तो अभी मेरे हिसाब से आगे का फ्यूचर सक्सेस करने के लिए, आगे का फ्यूचर सेव करने के लिए अभी मेहनत करना ज्यादा बेटर होगा। अगर अभी हम चिल करेंगे, अभी रिलैक्स करेंगे, तो आगे का फ्यूचर हमारा थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन इट कि वीक ऑफ्स नहीं मिलेंगे और वीकेंड्स पे।
या मैं दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर पाऊंगा या कुछ, इट्स ओके। एट लास्ट आपको अपने आप को खुद को ही संभालना है। Yeah. नो वे विल कम टू हेल्प यू। Okay, fine. Okay, so here we come to the end of our interview. So now we'll be having our feedback